السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے گفتگو کا آغاز کریں، آنے والے تمام سامعین کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ بطور اظہار تشکر و امتنان ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ لمحات، یہ خوبصورت موقع، یہ سنہرا موقع جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اس سنہرے موقع کے لیے جو ہمارے معاونین ہیں، اراکین ہیں، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، طالبات ہیں، ان تمام کے لیے ہم نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ محترم، شروع تا آخر ہمارا یہ پروگرام خوش اسلوبی کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ جس انداز میں ہمارے ان بچے اور بچیوں نے، طلبہ اور طالبات نے، ان اسٹوڈنٹس نے جو ہمارے سامنے الفاظ کے ذخائر اور خوبصورت انداز میں گفتگو کی ہے، یقیناً اس سے ایک میسیج جاتا ہے، ایک پیغام جاتا ہے ملت اسلامیہ کے نام، کہ یقیناً ہمارے دیار کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے کسی بھی شہر کے اندر علم کی کیا اہمیت ہے، اور ہماری معاشرت اور سماج کے اندر علم کو کیا درجہ حاصل ہے۔ ہم اس پیغام سے، اپنے اس بچے کے پروگرام سے ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً کبھی بھی کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی بھی قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر للکار پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو ہوگی وہ ہماری نئی نسل کے اندر، نسل نو کے اندر وہ تعلیمی خوبصورتی ہوگی، وہ تہذیب کی آماجگاہ ہوگی، وہ تمدن ہوگا، وہ ثقافت ہوگی، وہ درسگاہیں دی جائیں گی کہ جس سے ہمارے بچے اور بچیاں، چھوٹے بچے اور معصوم بچیاں، وہ ہمارے سامنے خوبصورت الفاظ کے اندر اپنی تقریر کو پیش کریں گی، اپنے نظم کو پیش کریں گے، اپنے مافی ضمیر کو پیش کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، کوئی بھی ادارہ ہو، ہمارے سماج کا ادارہ ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے کا ادارہ ہو، اگر کوئی ادارہ، کوئی بھی درسگاہ انسان اپنی شخصیت کا اور اپنی انا پرستی کی آماجگاہ بنا لیتا ہے تو میرے دوستو، اس ادارے سے وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، وہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ جو سسٹم کا آغاز مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمت اللہ علیہ نے لکھنؤ کی کانفرنس کے اندر آج سے 73 سال پہلے یہ کہا تھا، تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ خطاب کر کے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، آج ہندوستان کے اندر برادران وطن کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہمارا ہندوستان میں وہی حق ہے، ہمارا ہندوستان کے اندر وہی سٹیزنشپ ہے جو آج کی تاریخ کے اندر ایک وزیر اعظم کا ہے، ایک وزیر داخلہ کا ہے، ایک وزیر دفاع کا ہے۔ وہی حق مسلمانوں کا ہے، وہی حق ان علماء کرام کا ہے جنہوں نے بوریہ نشینی اختیار کر کے ہندوستان کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ تاریخ کے وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج یوم جمہوریہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ آج ریپبلک ڈے ہے اور یہ جشن کا دن ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ سچائی ہے کہ جن سچائیوں کو حقائق میں بدلنا پڑے گا اور یہ درس دینا پڑے گا، برادران وطن کو کہنا پڑے گا کہ اے لوگو، ہمارا بھی ہندوستان پر وہی حق ہے، ہمارا بھی ہندوستان پر وہی حق ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کو، آج ہمارے حقوق کو کیوں تلف کر رہے ہو؟ ہماری حد کے عزت کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے احترام کے خلاف کیوں بات کر رہے ہو؟ ہمارا تو وہی حق ہے ہندوستان کے اندر، علماء دیوبند کا تو وہی حق ہے ہندوستان کے اندر، جنہوں نے خلوص للہیت کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اس کو راضی کرنے کے لیے، ملت کے ہمدرد کے لیے، ملت کو انصاف دلانے کے لیے میرے دوستو بوریہ نشینی اختیار کر کے یہ ہماری قوم کے لیے دعائیں کی، جنگ آزادی کے ہیرو بنے۔ اور یہی للکار ہے میرے دوستو جو ہر زمانے کے اندر آج کے دن یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ پیغام
पैगाम की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये यौम जमहूरिया, ये जश्न का दिन एक पैगाम दिया था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन कायम हो, हमारे हिंदुस्तान मुल्क भारत के अंदर सुकून कायम हो। आज क्यों मेरे दोस्तों हमारे भारत के अंदर क्यों मुनाफरत का दर्स दिया जाता है, मुनाफरत की हवाएं फैलाई जाती है? आज माहौल को मसमूम क्यों किया गया? आज हिंद अकलियत और अक्सियत क्या तराना क्यों गाया जा रहा है? मेरे दोस्तों एक दूसरे से नफरत क्यों पैदा की जा रही है? हमारे मुजाहिदीन ने इसलिए कुर्बानियां दी थी मेरे दोस्तों, अपनी जानों का नजराना इसलिए पेश किया था कि हमारी नई नस्ल, आने वाली नस्ल, क़यामत तक आने वाले मुसलमान के लिए यह हमारा मुल्क भारत, यह हमारा वतन, यह हमारा वतन अजीज, यह अमन का गहवारा हो। आज एक मुसलमान अपने सफर के दौरान ऐसी दहशत महसूस करता है, उस एहसास को महसूस करता है मेरे दोस्तों कि वो सफर करने के लिए तैयार नहीं। आज रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में हमें सफर करने में दहशत महसूस होती है। वो हमारा मुल्क भारत, वो मुल्क अजीज, वो वतन अजीज जिनके लिए उलमाए देवबंद ने अल्लाह से दुआएं की और ये कहा कि अल्लाह हमारे इस भारत को अमन और सुकून का गहवारा बनाइए। या हर शख्स को ह्यूमन राइट्स के मुतालिक एक दूसरे के हुकूक की बात की गई, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई मेरे दोस्तों। इसलिए आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निफाज हुआ, आज कानून का निफाज इसलिए किया गया मेरे दोस्तों। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को अपने असलाफ की तारीख बताई जाए। इस दिन का एक पैगाम यह भी है कि अपनी नस्ल नौ को, नई नस्ल को इस तारीख से आगाह किया जाए, अपने असलाफ की कुर्बानियों से आगाह किया जाए और ये बताया जाए कि ऐ बच्चों, मुस्लिम कौम के बच्चों, आज तुम्हारे खिलाफ ये सदाएं बुलंद की जाती है। ये बताया जाता है कि आज मुस्लिम कौम के अंदर तालीम का बुहरान है, आज मुस्लिम कौम के बच्चों के अंदर तालीम का वो शौक और जज्बा नहीं है। मेरे दोस्तों, मुसलमान के नौजवानों, मुसलमान के बच्चे और बच्चियों, तालिब इल्मों, आज तुमको ये साबित करना पड़ेगा कि हमारे अंदर वो जज्बात है, हमारे अंदर वो एहसासात है जिससे आज हम इस दिन के अंदर ये पैगाम दे रहे हैं कि हम भी अपने असलाफ की कुर्बानियों को, उनकी तारीख को इंशाअल्लाह जिंदा रखेंगे और हर 26 जनवरी आने वाला दिन हमारे लिए जश्न का दिन होगा, हमारे लिए तकरीब का दिन होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज इस बात की ज़रूरत है, आज इस बात की अहमियत है कि हम अपने बच्चों को ज़रूर बेज़रूर तालीम से रोशनास कराए। मुस्लिम कौम का एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपने असलाफ की कुर्बानियों को भुला रहा है, उसको फरामोश कर रहा है और ये साजिशें हो रही है, मनसूबाबंद साजिश हो रही है कि मुस्लिम कौम को उनके असलाफ की कुर्बानियों से नाबलद कर दिया जाए, उनको उनकी तालीम गाहों के अंदर, उनकी दरसगाहों के अंदर उन निसाब को दाखिल नहीं किया गया। हिंदुस्तान की उन तारीख को हज़फ किया जा रहा है जिससे ये पता चले, मुस्लिम कौम को ये पता चले कि ऐ बच्चों, इन तारीख हिंदुस्तान की तामीर के अंदर, हिंदुस्तान की शजरकारी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदुस्तान की तामीर के लिए जो कुर्बानियां हैं उनमें मुसलमानों की सीट नहीं है मेरे दोस्तों, ये साजिशें हो रही है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें उनको समझाने की कोशिश करना है, बिरादराने वतन को बताना है कि मेरे दोस्तों, आज यौम जमहूरिया है, एक तरफ यौम जमहूरिया है और दूसरी तरफ दम तोड़ती जमहूरियत है, दम तोड़ती इंसानियत है। मेरे दोस्तों, एक दूसरे से नफरत की हवाएं क्यों चल रही है, एक दूसरे से दुश्मनी क्यों हो रही है, जबकि हिंदुस्तान सबका है, हम सब उसके बराबर है। आज मुसलमानों के खिलाफ क्यों साजिशें हो रही है? इन मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान के लिए क्या नहीं किया है मेरे दोस्तों? उलमाए देवबंद की तारीख को हमें पढ़ना पड़ेगा, उलमाए देवबंद की कुर्बानियों को हमें पढ़ना पड़ेगा, उन बोनिया नशी हजरात की कुर्बानियों को पढ़ना पड़ेगा जो इसी मकतब की तरह, इन्हीं दरसगाहों की तरह इन बोरियों पर बैठकर मेरे दोस्तों, जिसने अल्लाह रसूल की खुशनुदी के लिए मेरे दोस्तों सदा एहतिजाज बुलंद किया था। और हम आपको बताते चले कि हिफ्जुर रहमान सिवारी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो आलमी कॉन्फ्रेंस थी मेरे दोस्तों, लखनऊ के अंदर मुनक़िद हुआ, वो
कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी और उन्होंने बवांगे दुहली ऐलान किया था मेरे दोस्तों कि मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हो, जो लोग भी मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं हम उनसे वफादारी का सबूत मांगते हैं। मुसलमानों के सिटीजनशिप पर कभी शक मत करना। मुसलमान इस मुल्क का वफादार है, मुसलमान इस मुल्क का मेहमान है, मुसलमानों ने इस मुल्क को आबाद किया है, मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियों से इस हिंदुस्तान की जगह जगह को तामीर किया है मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान की आबादी, हिंदुस्तान की आबादकारियां ये मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। इसलिए उन निसाबों से, तारीख के उन औराक से अगर इन मुसलमानों के नाम को हटा दिया जाएगा, उन उलमाए किराम के नामों को हटा दिया जाएगा, उनके नामों को फरामोश कर दिया जाएगा, तो मेरे दोस्तों तारीख हिंदुस्तान के वो औराक, वो हिंदुस्तान के वो सफ़हात अपनी सफ़ेदी ख़त्म कर देंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने असलाफ की इन कुर्बानियों को ज़रूर याद करें और अपने इदारे को, अपने मकतब को, अपनी दरसगाहों को अपनी अना का शिकार बनाकर ऐसा शोर गुल न मचाए मेरे दोस्तों, जिससे हम जो असल हमारा पैगाम है, जो असल पैगाम है मेरे दोस्तों, हम दूसरों तक पहुंचा ना सके। इससे बहुत ही बड़ा अफसोसनाक पहलू सामने आएगा। इसलिए हम अपने इदारे को यूनिवर्सल इदारा समझकर, यूनिवर्सल सिस्टम समझकर हम इस तालीम को आगे बढ़ाए, अपने बच्चों को मकतब के अंदर पढ़ाने की कोशिश करें। और इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे गांव का, हमारे दियार का, हमारी बस्ती का हर बच्चा मकतब की ज़रूर तालीम हासिल करे। इंशाअल्लाह उसको तहज़ीबुल अखलाक का सबक दिया जाएगा। असलाफ व अकाबिर की वो तारीख और दास्तानें सुनाई जाएंगी, जिनको हमारी नस्लों को समझ में आएगा कि वाकई में आज से 74-75 साल कबल हिंदुस्तान की आज़ादी किस अंदाज में की गई, और आज की तारीख जिसके अंदर इंसानियत झिझक महसूस कर रही है, इंसानियत के अंदर हिचकिचाहट महसूस हो रही है। एक इंसान दूसरे इंसान को मोहब्बत की दावत देने की बजाय नफरत की दावत क्यों दे रहा है मेरे दोस्तों, ये हमें समझना पड़ेगा और दूसरों को समझाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि तामीर की जानिब सिफते सैले रवा चल, तामीर की जानिब सिफते सैले रवा चल। ये वादी भी हमारा है, वो गुलशन भी हमारा है। इसलिए मेरे दोस्तों आखिरी बात यही है कि तारीख के औराक के अंदर हम अपनी बातों को साबित करने के लिए अपनी तालीम की दरसगाह को मजबूत, जितना से ज़्यादा हो मजबूत करें। इंशाअल्लाह इससे हमारा मुस्लिम कौम का बड़ा फ़ायदा होगा और जो मुल्क के अंदर नफ़रतें हैं, अदावतें हैं, इंशाअल्लाह उनका खात्मा किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के अंदर अमन व शांति कायम फरमाए, नफ़रतों का खात्मा फरमाए, एक दूसरे के एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।